Hello students, now today in this session we will discuss about force. Students, first of all we will start from definition of force. A force is a physical cause that changes or tends to change the state, size or shape of the body. मतलब ये कि बॉडी के शेप, साइज या फिर उसके स्टेट में हम चेंजेस ला सकते हैं या फिर लाने की कोशिश कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. ओके. Now, effects of force. A force can change the dimensions of the body. Dimensions means shape or size of the body. So, on applying force, it can change the size or shape of the body. Okay. Next, a force can produce motion in the body. That is, it can change the state of rest or of motion of the body. Means that on applying force we can change the state of rest of body. Okay. On applying force, now we can also increase or decrease velocity of the body. मतलब ये कि बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन भी हो सकता है, या फिर वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज करके बॉडी को रेस्ट में भी ला सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे जो भी इफेक्ट्स है, यहाँ से एक नया डिफिनेशन निकल के आ रहा है. फोर्स इज एन एजेंट विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. ओके. क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट एसआई यूनिट एंड सेकंड सीजीएस यूनिट. स्टूडेंट, वी हैव फार्मूला फॉर फोर्स. F equals ma. Now, m for mass and a for acceleration. Student, SI unit of mass is kilogram. SI unit of acceleration is meter per second square. So, in SI system, unit of force will be kilogram meter per second square, and this kilogram meter per second square is also known as Newton. Okay, so SI unit of force will be Newton. Now, CGS unit of force. In CGS system, unit of mass will be gram, unit of acceleration will be centimeter per second square. So, CGS unit of force will be gram centimeter per second square. Gram centimeter per second square, and also known as dyne. So, here a question: what is 1 Newton? Define 1 Newton. Define 1 dyne. Okay. Now, student, if we take mass of body 1 kilogram and produced acceleration of 1 meter per second square, मतलब ये कि अगर कोई बॉडी लेते हैं उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी का अगर मास 1 किलोग्राम है और अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो, तो उस समय जो फोर्स अप्लाइड फोर्स होगा एक्चुअली वो ऑफ 1 न्यूटन होगा. ओके. 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर यूनिट किलोग्राम ऑफ मास. ठीक है. सिमिलरली 1 dyne is the force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square per unit mass. मतलब ये कि अगर हम किसी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो, 1 ग्राम हो, अब उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा एक्चुअली वो ऑफ 1 न्यूटन होगा, 1 dyne होगा. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और different types of Olympiad. Define 1 Newton. What is meaning of 1 Newton? What is meaning of 1 dyne? Okay. Now, next, kinds of forces. Now, on the basis of application, we have 2 types of forces. First, contact forces, and second, non-contact forces. Student, frictional force
normal reaction force, tension force, force exerted by a spring, force exerted by during collision, etc. All are examples of contact forces. Contact forces means the forces which make a physical contact during their application are known as contact forces. मतलब ये कि अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है कि जो भी सरफेस है और या फिर वो बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, फिजिकल कांटेक्ट सेपरेशन नहीं है और अगर फिजिकल कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी फोर्स अप्लाइड होंगे उनको एक अलग टाइप का कैटेगरी में रखेंगे, वो होगा कांटेक्ट। ओके, नेक्स्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। मतलब ये कि जब कोई फोर्स इस तरीके से एक्ट हो कि दो बॉडी के बीच में सेपरेशन हो, तो उस कंडीशन में अगर बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, यानी कि वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है और कुछ सेपरेशन है, तो उस कंडीशन में कौन से फोर्सेज आएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्सेज, फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सन, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये जितने भी हैं एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये सब के सब एग्जांपल हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेज की, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन होता है, ठीक है। और एक खास बात ये है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा वो बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो दो मैग्नेट के बीच में जैसे जैसे वो बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कराओगे आप, तो देखोगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो भी या रिपल्सन होगा, वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा, ओके। और जैसे जैसे डिस्टेंस को हम पास में लाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे वो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस रिलेशन से भी हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? ओके, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? स्टूडेंट, 1 न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, and there are 1000 gram in 1 kilogram, so we can write 1000 gram into and 100 centimeter in 1 meter, so we can write 100 centimeter per second square. Now after solving we have 1 0 0 5 times 0 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज डाइन। सो 1 न्यूटन इक्वल्स 10 to the power 5 डाइन। दिस इज रिलेशन बिटवीन SI and CGS unit of force, and also this is relation between Newton and dyne. Okay, thank you.